myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Today we will start chapter number 4, Introduction to Layer, part 2. Student, last lecture we learned how to use layer. In layer we did practical of gradient layer. Right student? So in this lecture I am going to teach you the next practical, that is rotation on specified path. So let's start it. First of all, start Simfix Studio. I already started over here. When it will start first time, it will take time, so you have to wait. Okay, so once it started, after that there is the option in the file menu. Go to the panel and reset Windows to original layout. When you reset it, all the panel will be set on their position, and after that you have to start the practical. Okay, so rotation on specified path, what you have to do using this concept of encapsulation, we have to take a one ball rotating around a particular path. We define the starting point and the ending point. In Simfig, it automatically assumes the path to be straight. We want to move the object as per our defined path. So, what is the steps for that? Let's start it. First of all, in this practical, I am going to use beeline tool. So, from here you have to select on beeline tool, click on it, and after that student, see here, first I take one point here, next point here, third point here, fourth point here, fifth point, sixth point, and again the previous point I have to join. Then for that, right click on the mouse and it is the option loop beeline. So select that option, so it will connect it. After connecting it, you have to click on transform tool, so it will be connected, and you can see here this is perfectly joined all the points, right? But student, in your computer maybe there is the color will be filled inside this beeline tool. So how to remove that? So again I remove this thing and I will show you. When you click on beeline tool, so at that time your this create region beeline option is enabled. So when it is enabled, at that time how it will be look, just one more time I will show you. It will be look like this way, but you don't want this inside color, and that's why what you have to do student, in beeline tool properties you have to disable this option. It means uncheck create region beeline tool, and after that you have to draw this thing. So again I delete this layer, and using beeline tool I am creating it again. So first point here, second point, third point, fourth point, fifth point, sixth point, and from here at the previous point again loop beeline. And now you click on transform tool, so it only you can see here the line, the color field it's not come, right? So using this, what is the next step? You have to remove this corner, means it's bent. So for that, again from transform tool you have to click on this region beeline tool, and from here you can see here this point is called duck in Simfig. So this is yellow color duck. You have to remove this, move from like this way and remove the bend. Again
from here also you have to remove this way. Again from here you have to remove this way. Again from here. इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये जो सारे जो बैंड है यानी जो कॉर्नर है इसको रिमूव करना है. ओके, यानी ये जॉइंट देखने नहीं चाहिए, ये जॉइंट पता नहीं होनी चाहिए, ये परफेक्टली आपको इस तरीके से एडजस्ट करने हैं. ओके स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ. इसको हम लोग जो शेप चाहिए वो शेप में इसको बना सकते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी कि जो जितने भी कॉर्नर थे वो सारे कॉर्नर अभी जा चुके हैं और ये परफेक्टली एक शेप का हम लोग ने राउंड बनाया है. राइट. ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप हमें करनी है. यहाँ पे एक सर्कल लेंगे इन सेंटर. ओके स्टूडेंट, और अभी हमें नेक्स्ट स्टेप जो है उसको ये सर्कल को हमें ये जो लाइन ड्रॉ की है इसमें डालना है. यानी ये सर्कल इसमें ही मूवमेंट करेगा, इस पे ये घूमने वाला है. तो ये कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, तो ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करने के बाद सर्कल को सिलेक्ट करना है, इस पे राइट क्लिक करना है और सर्कल लेयर पे राइट क्लिक करना है. नॉट सर्कल, सर्कल लेयर पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद न्यू लेयर ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में आपको रोटेट पे क्लिक करना है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल बी लाइन टूल से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है. उसके बाद एक सर्कल टूल लेना है और सर्कल लेयर पे राइट क्लिक करके न्यू लेयर में ट्रांसफॉर्म और आपको रोटेट टूल पे सिलेक्ट करना है. जैसे आप रोटेट टूल पे सिलेक्ट करोगे ये रोटेट टूल आपको यहाँ पे सेंटर में लाके रखना है. ओके, इस तरीके से. और उसके बाद सर्कल टूल कंट्रोल की प्रेस करके सर्कल टूल और रोटेट टूल को एनकैप्सुलेट करना है. तो इसको मैं राइट क्लिक करेंगे और इसको एनकैप्सुलेट कर देंगे. और यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो रोटेट टूल है ये एग्जैक्टली सर्कल टूल के ग्रीन डक पे होना चाहिए. तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं ये दोनों टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे पता चलेगा ये एग्जैक्टली ये लाइन जो है ये इसके ग्रीन डक पे है. दिखाई दे रहा है स्टूडेंट. ओके, इसको डॉट को हम लोग डक ही बोलेंगे. तो जब भी अभी मैं नेक्स्ट टाइम मेरा लैंग्वेज यूज करूँ तो उसमें मैं इसको डक बोलूँगा. आपको ये ध्यान रखना है. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इनलाइन कैनवास को सिलेक्ट करना है. इनसाइड इनलाइन कैनवास द फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट द रोटेट टूल. इन रोटेट टूल you have to select the blue duck of the rotate tool, then circle tool green duck and new beeline tool. In beeline tool right click on it and select link to beeline option. So once you select it, the circle will be fit inside this line. So you can see here now if I am moving this circle, it's not going outside, it's only roaming inside that loop only. Okay student, so if it is coming properly then only your practical is correct. If this circle is going outside, it means it's not correct. Okay, now what is the next step? I move this panel at down, this also at down, and after that I start animate editing mode from here. So I click on it and this is the time frame which I already explained last lecture. From 0f to here there are total 3 frames, and with from 0f to 1 second there are total 24 frames. So my starting point I mentioned here, when 0 f time, that time my circle position is here. When my
next time is 20 12 frame. At that time circle position is here. When the next time I choose 1 second, at that time the circle position is here. When I choose 1 second and 12 frame, the circle position is here. When I choose 2 second, at that time circle position is here. When I choose 2 second and 15 frame, circle position is here. When I choose 3 second, that time circle position is here. When I choose 3 second and 15 frame, that time circle position is here. And when I choose 4 second, at that time circle position is here. And when I choose 5 second, at that time circle position is here. So after that I turn off animate editing mode. Okay students, so whatever the process I did here, it's recorded. Now if I want to see the output of this practical, then I have to click on preview setting dialog box, and here beginning time 0 app and ending time 5 seconds, that is correct. So I will click on the preview button and maximize this window, and from here I have to choose option 200%. I enable this loop and I play this option. So student, you can see the output, the circle is moving whatever the path you mentioned, right? So if this path is now in oval shape, that's why this circle is moving in oval shape. Now again नेक्स्ट प्रैक्टिकल आई एम शोइंग रोटेशन ऑन स्पेसिफाइड पाथ का। तो जैसे हम लोग ने देखा कि ओवल शेप में एक बॉल है, वो कंटिन्यू मूव कर रहा है, जिस पे हम लोग ने मूवमेंट किए, जैसे हम लोग मूवमेंट देंगे उस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं। अभी जो नेक्स्ट शेप में बना रहा हूँ वो स्टार शेप बना रहा हूँ यूजिंग बी लाइन टूल, और उस पर मेरे को बॉल की मूवमेंट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यूजिंग बी लाइन टूल से एक स्टार बनाएंगे, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, और यहाँ पे इसको लूप बी लाइन करते हैं और ट्रांसफॉर्म टूल से इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो गई, राइट स्टूडेंट। अभी हमें इस पे एक सर्कल को सेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक सर्कल टूल पे क्लिक करेंगे। फिर से सिंपल स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट ये आपके साथ भी बार बार हो सकता है मे बी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे स्टार शेप बनाते हैं यूजिंग बी लाइन टूल। यहाँ पे जाके लो बी लाइन, ओके। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं और सर्कल टूल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ओके। इसके बाद फाइल में जाके पैनल रीसेट विंडोज टू ओरिजिनल लेआउट, ओके स्टूडेंट। देखिए इस पे अगर हम लोग फास्ट वर्क करने जाएंगे तो ये हैंग भी होगा। अभी सर्कल टूल पे यहाँ पे सर्कल लेयर को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक ऑन दैट, न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म रोटेट टूल, ओके। नाउ कीप दिस रोटेट टूल ऑन सर्कल लेयर, okay, check it, is it coming on perfectly? Yes, it's perfect. Now select rotate tool and circle tool, right click on it and encapsulate it. एनकैप्सुलेट होने के बाद यहाँ से इनलाइन कैनवास को सिलेक्ट करना है, रोटेट टूल का ब्लू डक, मे बी समटाइम अगर ये डक सिलेक्ट नहीं होंगे तब ये सर्कल प्रॉपर लाइन पे अटैच नहीं होगा। फिर ग्रीन डक और फिर बी लाइन टूल पे राइट क्लिक करके लिंक टू बी लाइन, देखो हुआ यहाँ पे स्टूडेंट अटैच, ओके।
अगर अभी आप ये सर्कल को सिलेक्ट करोगे और बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो ये नहीं निकलेगा, ये सिर्फ उसी पाथ पे घूमेगा जो आपने मेंशन किया है। देखो समझ में आ रहा है स्टूडेंट, इसके बाहर वो नहीं जाएगा बिकॉज ये लाइन के अंदर फिट हो चुका है। आप ये लाइन पे कहीं पे भी घुमा वो घूमेगा, तो इससे बाहर खींचने की कोशिश करो तो वो नहीं निकलेगा, उसी में ही फिट रहेगा। ओके, अभी हमें नेक्स्ट वर्क क्या करना है, तो सबसे पहले ये पैनल को बॉटम में रखते हैं, एनिमेट एडिटिंग मोड को ऑन करते हैं और सर्कल की पोजीशन फिलहाल मैं यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ से एनिमेट एडिटिंग मोड ऑन करते हैं। 0 फ्रेम पे सर्कल की पोजीशन है यहाँ पे, 12 फ्रेम पे सर्कल की पोजीशन है यहाँ पे, 1 सेकेंड पे सर्कल की पोजीशन है यहाँ पे, अगेन 1 सेकेंड एंड 12 फ्रेम पे सर्कल की पोजीशन है यहाँ पे, अगेन 2 सेकेंड पे सर्कल की पोजीशन है यहाँ पे, 2 सेकेंड एंड 12 फ्रेम पे सर्कल की पोजीशन है यहाँ पे, 3 सेकेंड पे सर्कल की पोजीशन है यहाँ पे, 3 सेकेंड एंड 12 फ्रेम पे सर्कल की पोजीशन है यहाँ पे, एंड 4 सेकेंड पे सर्कल की पोजीशन में रखता हूँ यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, आप जैसे आपको मूवमेंट करनी है वैसे आप मूवमेंट कर सकते हो। एनिमेट एडिटिंग मोड यहाँ से बंद करते हैं और प्रीव्यू विंडो में जाके इसका बिगनिंग टाइम है 0f और एंडिंग टाइम है 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड करेंगे और प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे से इसको 200% साइज देनी है और लूप ऑन करना है और प्ले करना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हो ये सर्कल की मूवमेंट जैसे आपने इसको शेप दिया है कंटिन्यू उसी हिसाब से इसकी मूवमेंट होगी। ये हैंग हो रहा है बीच बीच में, कोई बात नहीं, फिर से मैं प्रीव्यू करता हूँ इसको। यहाँ पे देखना 4 सेकेंड ही लेना है, बाई मिस्टेक वहाँ पे 45 सेकेंड चला गया है इसलिए वो आगे वर्क नहीं कर रहा था। अभी फिर से देखते हैं, इसको प्ले करेंगे, ओहो फिर से स्टार्ट करते हैं सिनफिक स्टूडियो। अगर सपोज ऐसा अचानक आपका प्रोजेक्ट बंद हो जाए तो सिनफिक स्टूडियो फिर से स्टार्ट करना और रिकवर बटन पे आपको क्लिक करना है, यानी जो आपका प्रोजेक्ट था वो एज इट इज़ रहेगा, वो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर यह हैंग भी होता है। और यहाँ पे 4 सेकेंड करना, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, 200% प्ले करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये प्ले होगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ओके, तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।